Life always gives you many opportunities and you get success if you continuously keep on improving yourself. हम जो भी करें उसको और अच्छे से करने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर हम सफल होंगे. From today we are making some changes in our capsules and I will wait for your feedback, suggestions and comments. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with sentence improvement. The only good thing about these pens are their color and their size. Pens are, pens के बाद R लगाना तो बिल्कुल सही लगता है, plural subject, plural verb. पर थोड़ा और देखें, the only good thing about these pens, इस पूरे फ्रेज में जो एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसमें कंट्रोलिंग टर्म कौन सा है? तो इसमें कंट्रोलिंग वर्ड है थिंग. द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स, ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसलिए आर की जगह हमको इज लगाना पड़ेगा. रिमेंबर, द ओनली गुड थिंग अबाउट समथिंग और द ओनली गुड थिंग अबाउट मेनी थिंग्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज 100 बुक्स इज सिंगुलर. द ओनली गुड थिंग अपने आप में सिंगुलर है. अब अबाउट के बाद, ऑफ के बाद प्लूरल भी लगा हो तो भी कंट्रोलिंग वर्ड के सिंगुलर होने के कारण वी शुड ट्रीट दिस सेंटेंस एज सिंगुलर एंड देयरफॉर एरर लाइज इन सी. आगे बढ़ते हैं. वर्ड ऑफ द डे. व्हाट्स अ गुड वर्ड? एज डैश बीइंग्स वी लिव ईच डे कॉन्शियस ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स एंड विक्ट्रीज. एज डैश बीइंग्स, चूंकि हम लोग ऐसे प्राणी हैं, we live each day conscious, हम प्रत्येक दिन को सचेत होकर जीते हैं. कॉन्शियस ऑफ अवर शॉर्टकमिंग्स एंड विक्ट्रीज, हमारी कमजोरियों और हमारी जीतों के बारे में सचेत होते हुए हर दिन हम जीते हैं. पहला ऑप्शन है सेंसेशनल. सेंसेशनल का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत सनसनीखेज हो. नाउ दिस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर न्यूज. सेंसेशनल न्यूज, सेंसेशनल क्राइम, सेंसेशनल इंफॉर्मेशन और सेंसेशनल टीवी चैनल्स. अगला ऑप्शन है सेंशिएंट. सेंशिएंट का मतलब होता है चैतन्य, चेतना युक्त. somebody who has sentience, somebody who has consciousness is sentient, is conscious. सेंटिमेंटल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो, too much emotional. A person who is always controlled by sentiments is sentimental. Static, रुका हुआ, not moving, something which is stagnant, जो स्थिर हो उसे कहेंगे static. And senile is somebody who is weak because of old age. Due to old age, your senses are not properly working, then you are senile. So which option is best here? I think we can find out that sentient probably is the best option here. As sentient beings, चूंकि हम लोग चैतन्य प्राणी हैं, we live each day conscious of our shortcomings and victories. Let's understand the world better. Now, dear friends, today's passage has been taken from the Pioneer 30th June. आप ऑब्जर्व करिए, हमने आइडियल यूनिट्स को अलग अलग कलर में लिखा है so that you can read them and understand them better. Is it really important to wrestle over the politically motivated Chinese munificence at a time when our eastern neighbor might be having the last laugh? For competitive and competitive slogan shouting on which party benefited more from China doesn't matter. Whether the nation has sized up its priorities well, pandered to every ruling regime in India, made sure that our markets are ever hungry for its products and bargained hard to extract what it wanted. आइए टफर देखते हैं. टू रेसल ओवर का मतलब होता है किसी चीज पर कुश्ती करना. टू फाइट ओवर समथिंग. म्यूनिफिसेंस, जब आप कोई गिफ्ट देते हैं, डोनेशन करते हैं, देन यू शो योर म्यूनिफिसेंस, यू आर म्यूनिफिसेंट. द लास्ट लाफ, when two people compete, the one who wins has the last laugh. The winner has the last laugh. Sized up, when you assess properly, assessed, sized up मतलब assessed properly, sized up. Pandered,
Pandered is basically when we serve to somebody's base instincts. हम किसी व्यक्ति की बुरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसे कुछ ग्रेटफुल बनाते हैं, उसे सेटिस्फाई करते हैं, उसे ग्रेटिफाई करते हैं. Then we pander to him. रेजीम का मतलब होता है शासन. जो भी शासन में हो उसका रेजीम चल रहा है. बार्गेन हार्ड आप समझ ही गए होंगे. When you are a tough negotiator, आप बहुत अच्छे से negotiate करते हो, then you are bargaining hard. And extract का मतलब होता है निकालना, सब निकालना, एसेंस निकालना. To take out something is to extract. आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं. Is it really important? क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है to wrestle over the politically motivated Chinese beneficence? कि हम राजनीतिक उद्देश्यों से चाइना ने जो दरियादिली दिखाई है उस पर कुश्ती करें. At a time when our eastern neighbor might be having the last laugh. ऐसे समय पर जब हमारा पूर्वी पड़ोसी अंतिम रूप से विजय की तैयारी में है. ऑथर यहां पर कह रहा है कि चाइनीज चैलेंज इज वेरी बिग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक आफ्टर इफेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ बॉर्डर इश्यूज. हम देख रहे हैं कि चाइना इंडिया के रिलेशंस एक टफ सिचुएशन में जा रहे हैं. तो उस समय किसको कितनी दरियादिली दिखाई गई? इज इट एन इशू फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव स्लोगन शाउटिंग? प्रतियोगी और तुलनात्मक नारेबाजी के लिए ऑन विच पार्टी बेनिफिटेड मोर फ्रॉम चाइना डजंट मैटर. कौन सी पार्टी को चाइना से ज्यादा फायदा मिला इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. when that nation has sized up its priorities well. जब उस देश ने अपनी प्राथमिकताओं को बहुत अच्छे से असेस किया है. pander to every ruling regime in India. भारत में शासन करने वाले हर सरकार को ग्रेटिफाई किया है, कुछ ना कुछ दिया है. मेड श्योर दैट आवर मार्केट्स आर एवर हंग्री फॉर इट्स प्रोडक्ट्स. और सुनिश्चित किया है कि हमारे बाजारों में उनके उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहे. एंड बार्गेन हार्ड टू एक्सट्रैक्ट व्हाट इट वांटेड. और कड़ा मोल भाव किया है वो सब पाने के लिए जो वो चाहता था. तो ऑथर यहां कह रहा है कि चाइना ने अपने पत्ते बहुत अच्छे से फेंके हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं. सो द पैसेज बेसिकली exhorts all Indians to come together, forget all narrow fightings and to face up this new challenge. Thank you dear friends. आपको यह कैप्सूल कैसा लगा हमें जरूर बताइए. पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, इस पर बेस्ड टेस्ट हम आपको जरूर अवेलेबल कराएंगे. आप अपने कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए. निश्चित तौर पर इस कैप्सूल के माध्यम से हमारा संकल्प है कि जो भी हमें कॉम्पिटिशन फेस करना है उसको हम सक्सेसफुली क्रैक कर सकें. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय.